YouTube channel Gyananjali Mondal School. Standard 7, Subject SS, Chapter number 1, When, Where and How. Previous video we discussed about the accounts of travelers. Previous video we discussed about the accounts of travelers. Too many foreigners to come in India, and we discussed about some of the king rulers and the personal experience in his book, written in his book, and the time period was medieval period for the Italy, Abdul Razak of Persia, and the Athanasius Nikitian of Russia. Now, further moving, the European travelers who come to India from the 16th century CE onwards have left a mine of information for us. मतलब कि यूरोपियन ट्रैवलर्स वो कम टू इंडिया, मतलब कि जो भारत में आए थे तब टाइम पीरियड वो था 16th century, have left a mine of information for us, हमारे लिए information थे. The works of Jesus, Minceris and travelers like Barbosa, Ralph Fitch, Thomas Roy, Taverner, Billionaire and Menusi have described the conditions of the people, the state of trade and commerce, and the magnifications of the courts. मतलब कि जब यूरोपियन ट्रैवलर्स जब इंडिया में आए थे तब टाइम पीरियड था 16th century, और the works of Justus Menusius and travelers like जो ट्रैवलर्स थे जिसका नाम था बर्बोसा, राल्फ फिच, थॉमस रॉय, ट्रैवेनियर, बेरेनियर एंड मेन्यूसी हैव डिस्क्राइब, मतलब कि जो डिस्क्राइब करते हैं द कंडीशंस ऑफ, मतलब कि जो कंडीशंस थी पीपल, मतलब कि जो पीपल मतलब कि लोगों की जो कंडीशन थी वो डिस्क्राइब करता है. द स्टेट ऑफ ट्रेड, मतलब कि जो स्टेट का ट्रेड मतलब कि जो बिजनेस था, एंड द कॉमर्स मतलब कि जो अकाउंट्स वगैरह था, मतलब कि उसकी जो कंडीशंस थी वो डिस्क्राइब करता है. बेनिफिट्स ऑफ द कोर्स, और मतलब कि उसकी रूल्स करने की जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ किंग्स हैज अ डिफरेंट रूल्स. दैट मीन्स द मैग्निफिकेंस ऑफ द कोर्स, मतलब कि उसकी जो अलग कोर्स जो है वो उसकी बात करते थे. मतलब कि अगर अलग अलग मतलब कि अलग अलग किंग्स हो गए तो उसकी रूल करने की जो पैटर्न्स होगी, जो स्टाइल होगी वो भी अलग अलग होगी. मीन्स द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द मैग्निफिकेंस ऑफ द कोर्ट्स. रीजनल लिटरेचर, poems, stories and dramas also help to reconstruct the life and times of the age. Poems, stories and dramas also help us to reconstruct the life and times, of the age. Poems, stories and dramas also help us to reconstruct the life and the times of the age. मतलब कि poems, stories and dramas you casually see in a Bahubali movies. These dramas also help us to reconstruct the life and the times of the age. Like this, poems, stories and dramas also help us to reconstruct the life and the time of the age. मतलब कि रामायण, महाभारत, this is the poems, stories and dramas also help us to reconstruct the life and the times of the age. जय देवास, गीता गोविंदा, चांद, बरदाइस, पृथ्वीराज,
Rajso, and the works of Kanda poets Pampa and Baswana are some of the gems of the period. मतलब कि ये जो रत्न है, जेम्स मतलब कि रत्न कौन सा, तो कि जयदेवास गीता गोविंद, चांद बरदाइस, पृथ्वीराज झार रसो, and the works of Kanda poets Pampa and Baswana are some of the gems of the period. मतलब कि ये जो समय था उसके रत्न थे ये सब व्यक्ति. This period saw a profusion of literature in regional language such as Tamil, Telugu, Punjabi, Odia, Assamese and Maithili, which we will read about in the last chapters. मतलब कि ये जो languages है, this period saw a profusion of literature in regional languages. मतलब कि गुजरात में हमारे जो लैंग्वेज होगी वो रीजनल क्या होगी, तो गुजराती. लाइक दिस रीजनल लैंग्वेजेस सच एज तमिल, तेलुगु, पंजाबी, ओडिया, असम एंड मैथिली व्हिच वी विल रीड अबाउट इन द लास्ट चैप्टर. मतलब कि इसके बारे में हम डीप में लास्ट चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे. इसके बारे में रीजनल लिटरेचर्स द लैंग्वेजेस सच एज तमिल, तेलुगु, पंजाबी, ओडिया, असम एंड द मैथिली व्हिच वी विल read about in the last chapters. Resilience religious literature, मतलब कि लिटरेचर उसका मतलब क्या बोलते थे कि शैली, मतलब कि रिलीजियस शैली लिटरेचर. ड्यूरिंग दिस पीरियड Bhakti and Sufi movements became popular. The Bhakti and the Sufi sons wrote a lot of poetry which reflects the times they lived in. Even the Ramayana and the Mahabharata was translated into regional language during the periods. Here, during this period, Bhakti and Sufi movements became popular. मतलब कि ये जो टाइम पीरियड था उसमें कौन सी मूवमेंट्स जो है वो पॉपुलर बनी, तो कि मतलब कि यानी कौन सी मूवमेंट्स बनी, तो कि भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स बिकेम पॉपुलर, मतलब कि वो काफी प्रचलित हुई. The Bhakti and Sufi sons wrote a lot of poetry which reflects the times they lived in. मतलब कि भक्ति and the Sufi sons, मतलब कि भक्ति and Sufi sons wrote a lot of poetry, मतलब कि उसने काफी सारी पोएट्री लिखी है which reflect the times they lived in, मतलब कि जिससे हमें पता चलता है कि वो इस समय के थे. Even the Ramayana and the Mahabharata were translated into regional language during this period. मतलब कि रामायण और महाभारत दोनों ट्रांसलेट इनटू रीजनल लैंग्वेजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब कि दोनों के ट्रांसलेट जो है वो रीजनल लैंग्वेज में इस समय, मतलब कि दिस पीरियड में वो ट्रांसलेट हुए रीजनल लैंग्वेजेस में. रिलीजियस लिटरेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स बिकम पॉपुलर. मतलब कि ये जो टाइम जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब कि ये समय में भक्ति एंड सूफी, मतलब कि भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स बिकम पॉपुलर, मतलब कि भक्ति एंड सूफी जो है वो पॉपुलर बने. द भक्ति एंड द सूफी सन्स रोट अ लॉट ऑफ पोएट्री, मतलब कि भक्ति और सूफी सन्स जो थे उसने काफी सारी पोएट्री लिखी है विच रिफ्लेक्ट्स, मतलब कि जो रिफ्लेक्ट्स द टाइम्स दे लिव इन, मतलब कि वो ये समय में जिंदा थे. Even the Ramayana and the Mahabharata were translated into regional languages during this period. मतलब कि यहाँ तक कि रामायण और महाभारत दोनों मतलब कि अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में जो है वो ट्रांसलेट किए गए ये समय पे. ओके, ना
मतलब कि आप देख सकते हैं कि रामायण हर एक रीजनल लैंग्वेजेस में जो है वो पाए जाते हैं। गुजराती में आप अगर आप पढ़ना चाहो तो गुजराती में भी मिलेगी, इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में भी मिलेगी, हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में भी मिलेगी। ऐसे ही महाभारत में भी ऐसे ही, महाभारत भी आप रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में आप देख सकते हैं। अगर आप इसको गुजराती में पढ़ना चाहते हैं तो गुजराती में भी मिलेगी, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी मिलेगी, और मराठी में तक आप पढ़ना चाहते हो तो मराठी में भी आपको रामायण महाभारत जो है वो अवेलेबल रहेगी। इसीलिए द रामायण एंड द महाभारत were translated into regional languages during this period. Now our next topic is calligraphy. Here new topic is calligraphy. Many of the handwritten manuscripts in the medieval period were stylishly written and beautifully decorated. Many of the handwritten manuscripts in the medieval period were stylishly written and beautifully decorated. Calligraphy means many of the handwritten manuscripts in the medieval period. मतलब कि अपने हाथों से लिखा गया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो manuscripts. Many of the handwritten manuscripts in the medieval period, मतलब कि मध्यकालीन युग में हमें देखने को मिलते हैं. Were stylish written and beautifully decorated. You can casually see in your textbook. We discussed about in previous video calligraphy. आप देख सकते हैं कि सीहोर में जो ब्रह्मकुंड है, शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसमें सिद्धराज जयसिंह के द्वारा लिखा गया एक जो है हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है, जिससे हम देख सकते हैं कि स्टाइलिश रिटन एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड. This kind of discovered writing is called calligraphy. मतलब कि ये जो कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब कि वॉल, पिलर्स एंड एक्सेट्रा, मतलब कि कहीं भी लिखा हो सकता है कि दीवार में लिखा हो या फिर पिलर्स में लिखा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं कि दिस काइंड ऑफ डेकोरेटिव राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी. दिस काइंड ऑफ decorative writing is called calligraphy. मतलब कि ये जो स्टाइलिश रिटन एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड जो किया लिखा गया होता है, जो हमें उस समय का मतलब कि उस पास्ट का जो हमें इंफॉर्मेशन दे सके. रिटन रिकॉर्ड्स मतलब कि स्टाइलिश रिटन एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, दिस काइंड ऑफ डेकोरेटिव राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी. ओके, तो इसे हम जो स्टाइलिश लिखा गया होता है और जो ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया होता है, इस काइंड मतलब कि इस भाग को हम डेकोरेटिव मतलब कि अच्छी तरह से लिखा गया उसे हम क्या कहते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं. तो द
tradition of calligraphy existed in ancient India, the Persian influence gave rise to distinctive style. मतलब कि though the tradition of calligraphy मतलब कि different states have different rules and different traditions of calligraphy existed in ancient India. The Persian मतलब कि जो Persians जो होते हैं वो gave rise to distinctive style मतलब कि उसकी जो है वो अलग different kinds of मतलब कि उसकी जो जिसे हम ट्रेडिशन कहते हैं उसमें लिखा है. Calligraphy was used extensively to decorate monuments, pillars and tombs. The calligraphists used floral and geometric designs. मतलब कि जो कैलीग्राफी जो होती है वो यूज टू एक्सटेंसिवली टू डेकोरेट मॉन्यूमेंट्स मतलब कि उसको जो डेकोरेट करने की जो होती है वो मॉन्यूमेंट्स मतलब कि जिसमें हमने देखा था इन प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने देखा था कि मॉन्यूमेंट्स मतलब कि अपने हाथों से लिखा होगा मतलब कि लिखा है इसके बारे में बताया गया है. जो पिलर्स में भी होगा ये देखिए आप हम देख सकते हैं कि यू कैजुअली सी इन दिस पिक्चर्स ऑन पेज नंबर 17 inscriptions on the wall of the Qutub Minar like this pillars and tombs. The calligraphy used floral and geometric designs. मतलब कि इन शॉर्ट हम कैलीग्राफी के बारे में देखें तो उसे हम क्या कहते हैं कि many of the handwritten manuscripts in the medieval period were stylishly written and beautifully decorated. This kind of decorative writing is called calligraphy. मतलब कि अच्छी तरह से दीवार में या स्तंभ में या फिर उसे मॉन्यूमेंट्स में लिखा गया हो जिसे अच्छी तरह और जिसको हम मतलब कि राइटिंग को डेकोरेट किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं कैलीग्राफी कहा जाता है. Here next archival records. Our new topic is archival records. मतलब कि प्राप्त किए गए हुए records. Archival records. They are government documents or archival records related to certain dynasty of medieval India. Here, there are government documents or archival records related to certain dynasties of medieval India. Here, archival records. Let's discuss. There are government documents. There are government documents or archival records related to certain dynasties of medieval India. Here, there are government documents or archival records. मतलब कि there are government records, sorry,
डॉक्यूमेंट्स मतलब कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और आर्चिवल रिकॉर्ड्स मतलब कि आर्चिवल रिकॉर्ड्स किसके रिलेटेड मतलब कि उसके रिलेटेड जिसके सर्टेन डायनेस्टी ऑफ मेडिवल मतलब कि मध्यकालीन डायनेस्टीज और इंडिया के बारे में हो, उससे हम क्या कहते हैं आर्चिवल रिकॉर्ड्स। और दे आर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स मतलब कि वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किसके होते हैं गवर्नमेंट के, और आर्चिवल रिकॉर्ड्स होते हैं किसके रिलेटेड टू सर्टेन डायनेस्टी ऑफ मेडिवल इंडिया मतलब कि मध्यकालीन भारत के बारे में जो भी रिकॉर्ड्स है मतलब कि मध्यकालीन डायनेस्टीज के बारे में आर्चिवल रिकॉर्ड्स जो है उसे हम आर्चिवल रिकॉर्ड्स कहते हैं। These documents include royal orders. These documents include royal orders, territories between kingdoms, court records and revenue records. मतलब कि अगर हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड मतलब कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो होता है वो रॉयल ऑर्डर्स होते हैं मतलब कि राजाओं के ऑर्डर्स होते हैं। टेरिटरीज बिटवीन किंगडम्स मतलब कि दो राज्यों के बारे में करार के बारे में होता है। कोर्ट रिकॉर्ड्स मतलब कि राजाओं के कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स। रिवेन्यू रिकॉर्ड्स मतलब कि रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में होता है। दे गिव अस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ दोस डेज एंड हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री मतलब कि ये जो इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट्स जो है जिसमें रॉयल ऑर्डर्स होते हैं, टेरिटरीज बिटवीन किंगडम्स होते हैं, कोर्ट रिकॉर्ड्स जो होते हैं एंड रिवेन्यू रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो हमें दे गिव अस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें मतलब कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी दोस डेज मतलब कि वो जो दिनों की बात है टू हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री मतलब कि हमें हिस्ट्री में रिकंस्ट्रक्ट के बारे में हमें माहिती हमें देते हैं मतलब कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और आर्चिवल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू सर्टेन डायनेस्टी ऑफ मेडिएवल इंडिया मतलब कि मध्यकालीन भारत में जो सर्टेन डायनेस्टीज मतलब कि अलग अलग जो different styles of regional like this and archival records related to certain dynasty of medieval India. Those documents include royal orders, territories between kingdoms मतलब कि ये जो documents है वो किस उसमें क्या है मतलब कि क्या होता है तो royal orders होते हैं, territories between kingdoms होते हैं, court records होते हैं और revenue records भी होते हैं जो मतलब कि ये जो हमें जो मतलब कि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ दोस डेज एंड हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री मतलब कि जिससे हमें रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री करने में हमें आसानी मिले। नेक्स्ट टॉपिक इज archaeological sources. Archaeological sources. We know that archaeological deals with the material remains of the past civilizations. We know that archaeological deals with the material remains of the past civilization. Civilizations मतलब कि we know that archaeological deals with the material remains of the past civilization मतलब कि हम जानते हैं कि archaeological जो deals होती है वो किसके साथ होती है तो the material remains of the past civilization मतलब कि
पास्ट सिविलाइजेशन के साथ डील्स जो वो होती है। कॉइन्स पॉटरी ज्वेलरी टॉयज स्टैच्यूज ruins of old buildings etc. मतलब कि ये जो रिमेन्स ऑफ द पास्ट सिविलाइजेशंस जो है वो कॉइन्स द्वारा, पोएट्री, ज्वेलरी, टॉयज, स्टैच्यू, रूइंस, ओल्ड बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, मतलब कि ये जो पास्ट के जो क्लू जो होते हैं वो दैट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय आर्कोलॉजिस्ट थ्रो लाइट ऑन द लाइफ इन द पास्ट, मतलब कि ये जो आर्कोलॉजिस्ट है वो इससे मतलब कि ये सब चीजों की मदद से हमारे थ्रो लाइट ऑन द लाइफ इन द पास्ट, मतलब कि ये जो पास्ट में जो ये जो ह्यूमंस कैसे लाइफ जीते थे इसके बारे में रोशनी डालते हैं कि मतलब कि ये सब चीज़ों के द्वारा ही हमें पता लग सकता है कि इन द पास्ट मतलब कि पास्ट में ये जो हमारे मतलब कि अभी जो हम लाइफ जी रहे हैं उसके हिसाब से और ये जो पास्ट में जीते थे इसमें डिफरेंस हमें पता लग सकता है और वी नो अबाउट दिस काइंड ऑफ पास्ट। Archaeological sources include monuments, coins, inscriptions and objects of art such as paintings and sculptures। मतलब कि ये archaeological जो sources होते हैं include monuments, इसमें हम क्या क्या include कर सकते हैं, तो monuments होते हैं मतलब कि ये जो मतलब कि hand written record जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं monuments, फिर बाद में आता है coins, inscriptions and objects of art, मतलब कि ये जो आर्ट होते हैं such as paintings, मतलब कि ये मतलब कि मध्यकालीन युग की जो पेंटिंग होती है उसके बारे में, एंड स्कल्पचर्स, ये सब जो आते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में जो है वो इंक्लूड होते हैं। मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट सच एज पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, ये जो है वो सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में इंक्लूड होते हैं। Now, further moving for the new topic, inscriptions. The study of inscription is called epigraphy। मतलब कि ये जो इंस्क्रिप्शन के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहा जाता है। मतलब कि इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी की जाती है मतलब कि इसके लिए जो हमें पढ़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहा जाता है। इंस्क्रिप्शन इन वेरियस लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स टेल अस अबाउट द डिफरेंट डायनेस्टीज एंड देयर हिस्ट्री। मतलब कि ये जो इंस्क्रिप्शंस जो रहती है वो वेरियस लैंग्वेजेस मतलब कि डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स टेल्स अबाउट, मतलब कि ये जो स्क्रिप्ट्स जो है वो हमें कहती है किसके बारे में, द डिफरेंट डायनेस्टीज मतलब कि अलग अलग राजाओं के बारे में, देयर हिस्ट्री मतलब कि वो पास्ट के बारे में हमें बताया जाता है। मतलब कि ये जो ये इंस्क्रिप्शंस जो है इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। और इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, तो वेरियस लैंग्वेजेस मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स टेल्स अबाउट द डिफरेंट डायनेस्टीज एंड देयर हिस्ट्री। मतलब कि ये स्क्रिप्ट्स हमें बताती है कि अलग अलग राजाओं के बारे में और उसके
हिस्ट्री के बारे में। दे रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ द रूलर्स, रॉयल proclamations and gifts made by the king of temples, villages and scholars। मतलब कि ये जो रिकॉर्ड, मतलब कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है, द अचीवमेंट्स ऑफ द रूलर्स, मतलब कि रूलर्स के बारे में, और रॉयल प्रोक्लेमेशन एंड गिफ्ट मेड बाय द किंग ऑफ टेम्पल्स, मतलब कि राजाओं के बारे में, जो राजाओं के द्वारा जो बनाए गए जो टेम्पल्स है, विलेजेस है और स्कॉलर्स के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि सीहोर में ब्रह्मकुंड के बारे में, मतलब कि ये जो ब्रह्मकुंड जो है वो किसने बनाया, तो कि सिद्धराज जयसिंह के द्वारा बनाया गया है। मतलब कि द रिकॉर्ड्स ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द रूलर्स, रॉयल प्रोक्लेमेशंस एंड गिफ्ट्स मेड बाय द किंग्स ऑफ टेम्पल्स एंड विलेजेस एंड स्कॉलर्स। मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमने एग्जाम्पल दिया गया है वो किसके बारे में है, तो कि वो ब्रह्मकुंड के बारे में। सो स्टूडेंट, हमने अभी अपने देखा कि द रिकॉर्ड्स of the achievements of the rulers, royal proclamations and gifts made by the kings to temples, village and scholars। मतलब कि जो राजाओं के द्वारा बनाया गया जो टेम्पल्स, विलेज और जो स्कॉलर्स है उसके बारे में बताया जाता है। इंस्क्रिप्शंस also throw light on the social and economic condition of the people। मतलब कि ये जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें किसके, मतलब कि हमें और थ्रो लाइट ऑन द सोशल, मतलब कि सामाजिक के बारे में भी हमें बताया जाता है। फॉर द इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब कि इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, मतलब कि पीपल की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें हेल्प अस करती है। फॉर द मेडिवल पीरियड वी हैव प्लेंटली ऑफ मटेरियल रैगिंग फॉर द चोला इंस्क्रिप्शन टू द इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ द ताजमहल, The Red Fort and the Rajput places। मतलब मध्यकालीन पीरियड के बारे में we have plenty of material ranging from the Chola inscriptions, मतलब कि चोला जो इंस्क्रिप्शन है to the inscription on the walls of the ताजमहल, मतलब कि ताजमहल के बारे में जो बताया जाता है, और the Red Fort एंड द राजपूत प्लेसेस के बारे में जो बताया जाता है वो इंस्क्रिप्शंस जो है वो उसके द्वारा हमें पता चलता है। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्दर मूविंग monuments in our next video। Okay student, here your homework is archival records, write a short note and archival sources and inscriptions in your notebook। Okay student, we meet in our next video। Thank you very much, have a nice day।